So if you're preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos, which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise professor questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also, we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and do get to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIIB. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में बेसिकली क्या है कि देखिए कि आईटी एक्ट लाया गया था 2000 में। उससे पहले कोई भी आईटी एक्ट नहीं था, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिफिकेशन हो गई थी हर एक चीज की, तो उसमें कंप्यूटर्स शामिल हो गए। कंप्यूटर्स के पेरिफेरल्स जो थे, कंप्यूटर का डाटा, नेटवर्किंग, सब चीजें शामिल हो गई थी। फर्दर डिजिटल सिग्नेचर्स जो है उनको इंप्लीमेंट किया गया। तो डिजिटल सिग्नेचर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज सेट टू बी पीकेआई, दैट इज सेट टू बी पीकेआई। अब पीकेआई क्या होता है? पीकेआई इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। इट इज व्हाट? इट इज अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पर डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं, ठीक है, क्या उनके मीनिंग निकलते हैं उनके बारे में देखेंगे, एंड इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यू मस्ट बी अवेयर रिलेटेड टू दैट हाउ वी कैन डू बेसिकली रिमेंबर दीज टर्म्स। तो किस तरह से करना है, तो आपको अगर ये टर्म्स पता होंगी तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू एक्सेस। इट इज रिलेटेड टू एक्सेस। तो एक्सेस का बेसिकली डिफरेंट मीनिंग्स निकाले जाते हैं, एक्सप्रेशंस निकाले जाते हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है? यानी कि यहां तो मुझे फिजिकल एक्सेस मिला हुआ है किसी चीज का, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह पर मैं जा सकता हूं। या फिर एक्सेस का मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में देखता हूं, क्योंकि मैं बेसिकली आईटी से रिलेटेड बात करने वाला हूं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक्सेस का मतलब रहता है कि अगर मैं कंप्यूटर चलाता हूं एंड फर्दर मुझे यूजर आईडी पासवर्ड पता है, तो वहां पर कंप्यूटर का एक्सेस मेरे पास है। आई कैन डू कम्युनिकेट विद द सिस्टम इटसेल्फ। मैं नेटवर्क में अपनी पोजीशन बना सकता हूं। मैं जो भी लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल क्वेरीज हैं उनको लगा सकता हूं। दैट इज सेड टू बी व्हाट? उसको हम एक्सेस कहते हैं। एंड एड्रेसी का मतलब क्या होता है? एड्रेसी मींस अ पर्सन हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। यानी कि अगर यहां पर पर्सन ए ने, मान लीजिए पर्सन बी को एक ईमेल सेंड की है, ठीक है, तो बी क्या होगा? बी एड्रेस ही हुआ ना, क्योंकि उसके एड्रेस के ऊपर ही आपने उसको ईमेल सेंड की है। इसी तरह से अगर एड्रेस ही इन अ सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करते हैं, तो वो पर्सन होगा जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिसीव करने के लिए यहां पर ऑथराइज्ड है, यानी कि ओरिजिनेटर पर्सन वो रहता है जो कि ओरिजिनेट कर रहे ट्रांजैक्शंस को, जिसके एंड पर जो ट्रांजैक्शन है वो ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो वहां पर बेसिकली क्या है कि ओरिजिनेटर जो है वो यहां पर ट्रांजैक्शन को करेगा। किसके साथ करेगा? वो यहां पर ट्रांजैक्शन करेगा, एंड फर्दर वो किसके साथ ट्रांजैक्शन को करना चाहता है? एड्रेसी के साथ करना चाहता है। इन बिटवीन कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं आना चाहिए। ओके, देन इट इज एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है जो यहां पर अपॉइंट किया गया है अंडर द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द आईटी एक्ट। तो आईटी एक्ट के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके अंडर उनको यहां पर अपॉइंट किया गया है, ताकि जो कोई भी कंप्लेंट्स हैं, ऑफेंसेस हैं, एज पर द आईटी एक्ट उनके साथ डील किया जा सके। एंड देन इट इज रिलेटेड टू द अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर। अब ये देखिए, डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड ना बहुत से चीजें, टर्म्स आने वाली हैं, ठीक है, तो उनको हम साथ के साथ कवर करते रहेंगे। डिजिटल सिग्नेचर को आपको अगर मैं बेसिकली बताऊं तो होता क्या है कि इसमें हम पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया,
अब पीकेआई क्या होता है, इसमें दो तरह की कीज रहती हैं, दो एसिमेट्रिक कीज रहती हैं। एसिमेट्रिक कीज का मतलब है कि एक की से, यानी कि एक की से, की का मतलब है एक फ्रेज रहेगी, की का मतलब वो फिजिकल चाबी नहीं है, की का मतलब है कोई फ्रेज रहेगी, कोई रैंडम अल्फा न्यूमेरिक आपके पास रहेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये ऑथराइज्ड है, कि ऑथराइज्ड है, ठीक है। एंड फर्दर जैसे मान लीजिए पर्सन ए ने डिजिटल सिग्नेचर करना है किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, कि इसने डिजिटली सिग्नेचर करना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है इसी ने ओरिजिनेट किया है। एंड फर्दर जो पर्सन बी को भेजना चाहता है, क्योंकि ये हो सकता है ना कि जब ये डाटा को सेंड करे तो ये डाटा बेसिकली जाता तो बाय एयर ही है, बाय एयर ही डाटा जा रहा है या फिर लाइंस के थ्रू डाटा जा रहा है, तो अल्टीमेटली इस डाटा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है ताकि डाटा की इंटीग्रिटी खत्म ना हो, डाटा की ऑथेंटिकेशन बनी रहे। तो यहां पर पर्सन ए जो है वो पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सिग्नेचर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहां पर पर्सन ए के पास दो कीज होंगी, पर्सन ए के पास पीके के अंडर दो कीज होती हैं, लेकिन इसमें से एक की जो है वो पब्लिक रहती है, दैट इज अ पब्लिक की, यानी कि सभी के लिए अवेलेबल है, वो जो की रहती है वो सभी के लिए अवेलेबल रहती है। एंड द सेकंड की जो इनके पास अवेलेबल है दैट इज सेड टू बी द प्राइवेट की, जो इनको संभाल करके रखनी है। अगर ये की को घुमा देते हैं तो उसके केस में किसी और पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होगी, इनकी खुद की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो यहां पर ए के पास एक की है जो कि प्राइवेट की है, ठीक है, एक की वैसी है जो पब्लिक की है, ठीक है। अब यहां पर जो ए है वो यहां पर इस प्राइवेट की का इस्तेमाल करते हुए जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा भेज रहा था उसको इंकोड कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, इंकोड कर देंगे, उस डाटा को इंकोड कर देंगे, यानी कोई भी पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन, ना तो वो इस मैसेज को देख पाएगा, ना वो इस मैसेज के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, ऑल्टरेशंस कर सकता है, यानी कि डाटा इंटीग्रिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। एंड फर्दर पर्सन बी जो कि ऑथराइज्ड होगा, पर्सन बी जो कि ऑथराइज्ड होगा वो पर्सन ही यहां पर इसे एक्सेस कर पाएगा यूजिंग द पब्लिक की, वो वेरीफाई कर लेगा कि जो डाटा ये भेजा गया है ये ऑथेंटिकेटेड डाटा है। जो पब्लिक की है दैट इज मेंटेन्ड विद द कंपनीज, जो कि यहां पर सपोर्टिंग कंपनीज होती हैं वो यहां पर पब्लिक कीज को मेंटेन करती हैं। अब ये जो है इस पर्सन के रिलेटेड जो पब्लिक की है उसके थ्रू वेरीफाई करेगा कि जो डाटा है वो यहां पर, कि वो डाटा जो है वो यहां पर इंटीग्रेटेड है या नहीं है, कि यानी कि डाटा की इंटीग्रिटी यहां पर बनी हुई है या फिर नहीं बनी हुई है। अगर आपको पता होगा कि आपके पास जो जेआईबी सीआईबी के अब सर्टिफिकेट्स भी आते हैं वो भी डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स आते हैं, ठीक है, डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट आते हैं, यानी कि उन सिग्नेचर्स को, उन डाटा को, उन सर्टिफिकेट को ओपन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन इस चीज को बनाए रखने के लिए इस चीज का आपके पास क्या प्रमाण है कि वो आईआईबीएफ ने भेजा है, तो बैंक किस तरह से मानेगा कि ये आईआईबीएफ ने सेंड की है, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज तो बहुत से ऐसे होंगे ना पर्सन जो डुप्लीकेट बना लेंगे सर्टिफिकेट जेआईबी सीआईबी का एंड वो चला देंगे बैंक में इंक्रीमेंट लेने के लिए, तो बैंक कौन सा है वहां पर पर्सनली वेरीफाई करने वाला है, तो वहां पर वो डिजिटली सिग्नेचर का वेरिफिकेशन किस तरह से होता है, दैट इज बेसिकली आल्सो डन थ्रू द सेम मेथड, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर व्यू सर्टिफिकेट पर करते हुए वेरीफाई करना होता है एंड ऑटोमेटिकली पब्लिक कीज में से की जो है उसके रिलेटेड डाटा जो है, क्योंकि ये जब डाटा भेजा जाता है ना तो पब्लिक की भी साथ में भेजी जाती है जिसके थ्रू जो पर्सन है वो वेरीफाई कर सकता है कि जो डाटा है वो उसी पर्सन ने भेजा है, किसी और पर्सन ने नहीं भेजा है। इज दैट क्लियर? तो वहां से क्या होगा, पब्लिक की जो है वो इस कंपनी, सपोर्टिंग कंपनी के पास जाएगी, सपोर्टिंग कंपनी वेरीफाई करेगी कि उसी पर्सन से रिलेट करती है नहीं करती है, यानी कि एक ताले की सिर्फ और सिर्फ एक ताले की जो मल्टीपल कीज से खुलेगा, ठीक है, यानी कि एक चाबी जो है वो यहां पर पर्सन ए लगाएगा, सेकंड चाबी जो है वो यहां पर पब्लिकली अवेलेबल है, दूसरा पर्सन लगाएगा, तभी पता चलेगा कि ये उसी ताले की चाबियां थी या नहीं थी। अगर थोड़ा सा भी यहां पर डिफरेंसेस हुए तो वहां पर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। Is that clear? That is related to the PKI. Now let us get back to the affixing digital signatures. तो digital signatures को affix करने का मतलब है कि एक मेथड का अपनाना, एक प्रोसीजर को अपनाना जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, उनको डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेरीफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। Then it is appropriate government. Appropriate government means respect any enumerated list under the 7th schedule of the constitution, यानी कि 7th schedule of the constitution के हिसाब से जो भी लिस्ट दी गई उसके हिसाब से, या फिर relating to any state law enacted under list 3 of the 7th schedule to this to the constitution itself. The state government हो सकती है या फिर और कोई government हो सकती है, and any other case it could be the central government too. Then it is related to the asymmetric crypto system. I already told you asymmetric का मतलब क्या रहता है, asymmetric का मतलब रहता है कि दोनों जो चीजें हैं वो आपस में मिलती जुलती
मिलती नहीं है. Those are not related. Those are exclusive to each other. Those are not related. Those are exclusive to each other. Means a system of secure key pair जिसमें एक प्राइवेट की रहती है, एक पब्लिक की रहती है, एंड फर्दर यहां पर एक की यानी कि प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, एंड पब्लिक की का इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए. देन इट इज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. सो सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज अ पर्सन. ये वो पर्सन रहता है जिसको यहां पर एक लाइसेंस ग्रांट किया गया है टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है. दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. यानी कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो यहां पर डीएससी को इशू करेगी, किसी पर्सन को प्राइवेट पब्लिक की को इशू करेगी. दैट इज बेसिकली व्हाट दैट इज अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी. देन इट इज अ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट. It is a certification practice statement, means a statement issued by the certifying authority to specify the practices that the certifying authority employs to issuing the signature certificates. यानी कि जो certifying authority है वो यहां पर एक सर्टिफिकेट इशू करेगी. सर्टिफाइंग अथॉरिटी एक सर्टिफिकेट इशू करेगी कि उन्होंने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अपनाया है, उन सभी को यहां पर स्पेसिफाई किया जाएगा. इज दैट क्लियर? सो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो रहती है वो यहां पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती है. देन इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर. कंप्यूटर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑप्टिकल हाई स्पीड प्रोसेसिंग डिवाइस हो सकता है जो कि लॉजिकल अर्थमेटिकल फंक्शंस एंड जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं उनको यहां पर इंप्लीमेंट करता है. एंड फर्दर इट कैप्चर्स द डाटा इनपुट भी होती है, डाटा आउटपुट भी होती है. एंड इसके केस में हम यहां पर जो कैलकुलेटर्स हैं उनको शामिल नहीं करते हैं. ठीक है, तो इनका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इनके पास स्टोरेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एंड फर्दर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं विच आर कनेक्टेड एंड फर्दर रिलेटेड टू द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क. ओके, देन इट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है सिंगल कंप्यूटर, एक तो रहता है हमारे पास सिंगल कंप्यूटर. ओके, एक तो रहता है सिंगल कंप्यूटर, यानी कि जैसे मान लीजिए पर्सन ए जो है एक नोड है. नोड मीन्स कि एक कंप्यूटर है यहां पर, एंड फर्दर अगर ये कंप्यूटर जो है जैसे आपकी ब्रांच में जो कंप्यूटर्स हैं दोज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर थ्रू द सर्वर, दोज आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, यानी कि आप यहां पर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं, एंड फर्दर आप सर्वर के मॉडम के थ्रू, यानी कि अगर ब्रांच मॉडम के थ्रू देखें तो ये सभी सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं. ये सभी सिस्टम जो है आपस में कनेक्टेड है, एंड सर्वर जो है फर्दर इट इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस इटसेल्फ. ओके, तो ये बेसिकली क्या है? एक नेटवर्क से कनेक्टेड है. तो ये नेटवर्क से कनेक्शन जो है ये टर्मिनल्स के थ्रू भी हो सकता है, यहां पर कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकता है, मे भी हो सकता है सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड हो, मे भी हो सकता है कि टेरेस्ट्रियल लाइन के थ्रू कनेक्टेड हो, या फिर और कोई कम्युनिकेशन मीडिया है उनके थ्रू कनेक्टेड हो. ठीक है, तो ये डिफरेंट तरीके से हो सकता है, यहां पर आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं जिनके थ्रू ये जो डाटा है एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क. That can basically also be the internet, that can also be the intranet. ठीक है, तो वो इंटरनेट भी हो सकता है, इंट्रानेट भी हो सकता है जिसके थ्रू आप कनेक्टेड है. ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर रिसोर्स. अब कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब क्या है? कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क, सब चीजें किस में आ जाती है? कंप्यूटर रिसोर्स में आ जाती हैं, चाहे वो डेटाबेस से रिलेटेड है, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है. दोज आर ऑल अंडर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स. ओके, देन इट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम. तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यानी कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं. अगर सिस्टम की बात करें तो पूरे के पूरे सिस्टम, यानी कि जैसे एक मेरे पास लैपटॉप पड़ा है, दैट इज अ सिस्टम इटसेल्फ. ओके, तो यहां पर कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पेरिफेरल्स होते हैं जिसमें जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड फर्दर जो प्रोग्रामेबल हैं, एंड फर्दर जो एक्सटर्नल फाइल्स को हम रीच आउट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें. ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? दैट इज सेड टू बी द कंप्यूटर सिस्टम. देन इट इज रिलेटेड टू कंट्रोलर. कंट्रोलर मीन्स अ कंट्रोलर ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज. अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? जो यहां पर जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करती हैं, एंड इनके ऊपर होता है कंट्रोलर. इनके ऊपर क्या होता है? कंट्रोलर होता है. इनके ऊपर होता है हमारे पास कंट्रोलर. मीन्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, मीन्स द controller of the certifying authorities appointed under the subsection 1 of the section 17. Then it is a cyber appellate tribunal. Means a cyber regulations appellate tribunal established, जो कि cyber appellate tribunal क्या होता है?
जैसे मान लीजिए आपने कोई कंप्लेंट की तो उसके रिलेटेड क्या है, जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए वो यहाँ पर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है वो यहाँ पर ऑफेंसेस को यहाँ पर देखेंगे एंड उसके हिसाब से कोई ना कोई जजमेंट देंगे, कोई ना कोई जजमेंट दी जाएगी। एंड फर्दर ये जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होते हैं इनके पास सिविल सूट की जो पावर्स हैं वो यहाँ पर इनके पास रहती हैं, सिविल कोर्ट की पावर्स इनके पास रहती हैं, तो यहाँ पर वो जजमेंट देंगे, ठीक है। एंड फर्दर उसके बाद जो पर्सन है अगर उसको लगता है कि जजमेंट सही नहीं है, मेरे खिलाफ है या बिल्कुल सही नहीं दी गई है, तो उसके केस में पर्सन अपील कर सकता है। वो अपील किसके पास करेगा, दैट इज टू बी मेड टू साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल, वो साइबर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास की जा सकती है। 15th इट इज रिलेटेड टू द डाटा, इट इज रिलेटेड टू डाटा। डाटा का मतलब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, नॉलेज, facts, concepts, instructions which are being prepared or have been prepared in a formalized manner। यानी कि कोई भी चीज जो आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रिएट की है, that is pertaining to what, that is pertaining to the data itself। कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी नॉलेज हो सकती है। हो सकता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई चीज को स्टोर करके रखा हो, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू कोई चीज यहाँ पर आपने भेजी हो, या फिर इसके अलावा इसमें ये प्रिंट आउट्स भी शामिल रहेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में डाटा तो रहेगा, इसके अलावा हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी जो डाटा है वो हो सकता है कि पंच कार्ड हो सकता है कि पंच टेप्स हो, ठीक है। दैट इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, ऑल रिलेटेड टू डाटा इटसेल्फ। देन इट इज अ केस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर एक तरीका है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं एंड जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। इसमें पीके यानी कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज अ डीएससी, दैट इज अ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। So digital signature certificate is issued under the subsection 4 of the section 35। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर जो हमारे पास सीए है उसके द्वारा, यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर जो डीएससी है वो यहाँ पर इशू किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या रहता है कि जब इंफॉर्मेशन को यहाँ पर किसी ना किसी यानी कि प्रिंट आउट्स की फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तो वो मीडिया में स्टोर्ड है, मैग्नेटिक मीडिया में स्टोर्ड है, ऑप्टिकल मीडिया में स्टोर्ड है, कंप्यूटर मेमोरी में है, माइक्रोफिल्म में है, माइक्रोफिश में है, उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। देन इट इज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी कि जब ऑफिशियल गैजेट निकाला जाता है, पब्लिश किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दैट इज सेड टू बी व्हाट, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। देन इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। क्या होता है, यानी कि कोई भी डाटा जिसको जनरेट किया गया है एंड फर्दर हो सकता है कोई फाइल हो, कोई इमेज हो, कोई यहाँ पर साउंड हो, कोई वीडियो हो, कोई क्लिप हो, जिसको यहाँ पर स्टोर किया गया है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ठीक है। एंड इसको किसी भी यहाँ पर मैग्नेटिक डिवाइस में, किसी भी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर किया जा सकता है। देन इट इज रिलेटेड टू फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई यहां पर लॉजिक चलाता हूं, ठीक है, कोई क्वेरी चलाई, चाहे मैंने उसको प्रोसेस किया, चाहे मैंने उस चीज को डिलीट किया, चाहे मैंने उसको स्टोरेज किया यानी कि डिवाइस में चीज को स्टोर कर दिया, चाहे मैंने उसको रिट्रीव किया है, ऑल आर रिलेटेड टू व्हाट, ऑल आर रिलेटेड टू कोई एक फंक्शन परफॉर्म किया गया है। क्या मतलब है इनका, सभी की चीजों को कि मैंने कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म किया है, दैट इज रिलेटेड टू फंक्शन। देन आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, दैट कुड बी टेक्सचुअल, दैट कुड बी इमेज, दैट कुड बी साउंड, कोई भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो हो सकती है। हो सकता है कि डेटाबेस का कोई यहाँ पर रिकॉर्ड हो, दैट इज आल्सो पर्टेनिंग टू इंफॉर्मेशन, ओके। तो कोई भी डाटा, कोई भी चीज, कोई भी जो वो है वो बेसिकली रिलेटेड टू किसको पर्टेन करता है, दैट इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन। देन इट इज रिलेटेड टू इंटरमीडियरी। So intermediary with respect to any particular electronic message means any person who on behalf of another person receives, stores or transmits the message। जैसे मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजना था, टेक्स्ट मैसेज भेजना था, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप मैसेज भेजना था, तो आप मैसेज डायरेक्ट सेंड करते हैं क्या? इट सीम्स टू बी कि आप डायरेक्टली सेंड कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो व्हाट्सएप का सर्वर है दैट इज एन इंटरमीडियरी। जो व्हाट्सएप का सर्वर है दैट इज एन इंटरमीडियरी। तो पर्सन वन ने अगर व्हाट्सएप सेंड किया तो डायरेक्टली नहीं सेंड हो रहा, दैट इज बीइंग सेंड थ्रू द इंटरमीडियरी इटसेल्फ। तो यहां पर इंटरमीडियरी इन बिटवीन बैठा है। हो सकता है कि मल्टीपल यहां पर सर्वर्स हो, एक इंटरमीडियरी ना होते हुए मल्टीपल इंटरमीडियरीज हो सकते हैं जहां पर आपका डाटा स्टोर हो रहा है एंड आपके बिहाफ पर वो मैसेज जो है वो आगे भेजा जा रहा है। इज दैट क्लियर? दैट इज रिलेटेड टू द इंटरमीडियरी। आफ्टर दैट इट इज रिलेटेड टू की पेयर। तो की पेयर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के केस में आपके पास एक प्राइवेट की रहती है, एक पब्लिक की रहती है। दोनों यहां पर मैथमेटिकली यहां पर क्या रहते हैं, अनरिलेटेड। आपके जो एसिमेट्रिक कीज होती है ना, उसके केस में मैथमेटिकली तो रिलेटेड है, लेकिन अदरवाइज वो एक दूसरे से एक्सक्लूसिवली डिफरेंट है। ओके, सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड आजकल के केस में तो जो यहां पर इवन की इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया जाता है, उसके केस में टोटली अनरिलेटेड कीज का भी इस्तेमाल किया जाता है। देन इट इज रिलेटेड टू लॉ।
इट इज रिलेटेड टू लॉ, तो कानून तो कोई भी हो सकता है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर है, या सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंडर है, या फिर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर प्रोमulgate किया है, किस तरह का कानून किया है, ऑल आर बेसिकली अंडर द लॉ। तो इसकी ज़्यादा डिफाइंड आपको लैंग्वेज यूज़ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें बेसिक से चीज़ें पता होनी चाहिए कि चीज़ होती क्या है। एंड देन इट इज रिलेटेड टू लाइसेंस। सो लाइसेंस यानी कि जो यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस दिया जाता है उसके रिलेटेड बात करें कि वो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है, एंड कंट्रोलर उनकी देखरेख करता है। ठीक है, दैट इज द केस। ओरिजिनेटर कौन रहता है? ओरिजिनेटर वुड बी दैट पर्सन जो अल्टीमेटली जो यानी कि सेंड करना चाहता है डाटा को, या तो सेंड कर रहा है एंड फर्दर डाटा को जनरेट कर रहा है, डाटा को स्टोर कर रहा है, दैट ट्रांसमिट्स एनी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड causes any electronic message to be sent, generated, stored or transmitted to any other person. Okay, that is basically related to what? That is related to the originator. Then it is prescribed, means prescribed by the rules made under this act. यानी कि जो भी rules यहाँ पर बनाए गए हैं, अगर आप उन rules को मान रहे हैं, in that case it is said to be you are prescribed to the rules. Then it is said to be private key. तो private key जैसे आपको बताया कि private की दो keys में से हमारे पास दो keys होती हैं, एक public की, एक private की। एंड प्राइवेट की का इस्तेमाल होता है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए, पब्लिक की का इस्तेमाल होता है डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए। सिक्योर सिस्टम की बात करते हैं तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क को हमने तीनों चीज़ों को सिक्योर करना है। एंड फॉर द सिक्योरिटी का मतलब होता है कि रीजनेबल सिक्योरिटी हो, यानी कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस या मिसयूज ना हो सके, रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी हो एंड करेक्ट ऑपरेशंस उसके ऊपर चला सकें, रीजनेबल सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शंस, आर रीजनेबली सूटेड टू परफॉर्मिंग द इंटेंडेड फंक्शंस, यानी कि हम यहाँ पर उनके ऊपर जो भी फंक्शंस है प्रेफरेबली वो चला सकें। एंड अदर टू जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, जो भी जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स है उनको भी हमने मानना है। दैट इज रिलेटेड टू, अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करें देन इट इज सेड टू बी द सिक्योर्ड सिस्टम इटसेल्फ। देन इट इज अवर सिक्योरिटी प्रोसीजर। क्या रहता है सिक्योरिटी प्रोसीजर? जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 16 में बताया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज अ सिक्योरिटी प्रोसीजर दैट इज टू बी फॉलोड। ठीक है, उसे सिक्योरिटी प्रोसीजर कहा जाएगा। सब्सक्राइबर, दैट मीन्स अ पर्सन whose name the digital signature certificate is issued। तो जिस पर्सन के नेम में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया गया है दैट इज सेड टू बी सब्सक्राइबर। यानी कि अगर आपने मान लीजिए आपने डिजिटल साइन करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप अगर जो यहाँ पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी है उनसे अगर डीएससी लेते हैं तो यू विल बी अ सब्सक्राइबर, तो यू विल बी अ सब्सक्राइबर। ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू वेरीफाई। तो इन रिलेशन टू डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पब्लिक की के साथ क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम इस चीज़ का पता लगाएंगे पब्लिक की का इस्तेमाल करते हुए कि जो डाटा है वो इंटीग्रेटेड है या नहीं है, यानी कि ओरिजिनेटर जो है सेकेंड इट इज रिलेटेड टू कि हम ये पता लगाएंगे कि जो ओरिजिनेटर है उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन को सटीक तरीके से भेजा है या नहीं भेजा है। तो इन चीज़ों का हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं यूजिंग द वेरिफिकेशन। देन इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। So that was all related to the definitions and now it is related to the electronic governance. So जो चैप्टर 3 है वो यहाँ पर वो डिफाइन करता है related to the electronic governance। तो चैप्टर 3 जो है वो यहाँ पर डिफाइन करता है related to the that deals with the electronic governance and provides that information or any other matter shall be writing or in typewritten or printed form contained in such law such requirement shall be deemed to have been satisfied। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसमें आपने किस किस प्रोसेसेस का इस्तेमाल करना है, कौन वो किस तरह से कंसिस्टेंट होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं दैट इज सेड टू बी व्हाट? दैट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एंड दैट इज कवर्ड इन चैप्टर 3 एंड फर्दर रेंडर्ड और मेड अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो किन के ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो है वो शामिल रहेगी? अगर यहाँ पर उनको रेंडर किया जा रहा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज मेड अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इज असेसिबल सो एज टू बी यूजेबल फॉर अ सब्सिक्वेंट रेफरेंस। या फिर अगर हमने यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसको फर्दर हमने आगे किसी पर्सन के आगे इस्तेमाल करना है तो उसके केस में हम क्या करेंगे? उसको हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के तरीके से करेंगे। द सेड चैप्टर आल्सो डिटेल्स द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर्स। तो ये लीगल एक रिकॉग्निशन देता है। जो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका जो चैप्टर 3 है दैट लीगली रिकॉग्नाइज द डिजिटल सिग्नेचर्स। इज दैट क्लियर? फर्दर इट इज रिलेटेड टू सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो चैप्टर 4 में कवर्ड है यहाँ पर एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द regulations of the certifying authorities. The act envisages
कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, तो एक कंट्रोलर बनाए गए हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के जो यहाँ पर सुपरविजन करेंगे, यानी कि जो भी एक्टिविटीज की जा रही है यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के द्वारा। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज यहाँ पर मल्टीपल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हो सकती हैं। अब इनके ऊपर क्या है, कंट्रोलर हैं जो इनकी इंस्पेक्शन करेंगे, इनकी देखरेख करेंगे, एंड फर्दर जो कोई भी स्टैंडर्ड चाहिए, कंडीशन चाहिए, उनको यहाँ पर इंपोज करेंगे। एंड फर्दर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज की जो गवर्नेंस है वो भी यहाँ पर कंट्रोलर के द्वारा की जाएगी। अगर कोई डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स हैं या फिर कंटेंट रजिस्टर सिग्नेचर सर्टिफिकेट के, उनके बारे में बताया जाएगा। दैट ऑल टास्क आर परफॉर्म बाय द CCA, दैट इज अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। ओके, एंड फर्दर जो एक्ट है इसका जो चैप्टर 4 है ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि डोमेस्टिक जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है वो तो आपके पास है ही है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज तो है ही है, इसके अलावा आपको फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज भी चाहिए। तो इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है उनके बारे में भी इसमें बताया गया है। Then it is related to DSCs, तो DSCs में यहाँ पर जो है ड्यूटीज क्या रहती हैं सब्सक्राइबर्स की, उनके बारे में बताया जाता है कि जिसको उन्होंने मानना है। ठीक है, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है DSC को यहाँ पर इशू करेगी, एंड फर्दर दीज आर कंट्रोल्ड बाय द CCA। ठीक है, तो CCA के द्वारा उनको कंट्रोल किया जाता है। एंड फर्दर जो पर्सन को DSC इशू किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सेड टू बी सब्सक्राइबर। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यानी कि अगर यहाँ पर सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है एक सर्टिफिकेट इशू करती है टू द पर्सन ए, तो पर्सन ए जो है, ठीक है, यहाँ पर अगर DSC इशू करती है पर्सन ए को, तो पर्सन ए यहाँ पर क्या कहलाएगा, पर्सन ए वुड बी द सब्सक्राइबर, पर्सन ए वुड बी द सब्सक्राइबर इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू पेनल्टीज, इट इज रिलेटेड टू पेनल्टीज। तो चैप्टर 9 जो है यहाँ पर पेनल्टीज के बारे में बताता है, एंड जो अलग अलग ऑफेंसेस यहाँ पर IT एक्ट में बताए गए हैं उनसे किस तरह से एडजुडिकेट किया जाएगा उनके बारे में बताता है। तो पेनल्टीज जो हो सकते हैं यहाँ पर, अगर पेनल्टीज रहेंगी, अगर कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज किया गया है, कंप्यूटर्स को डैमेज किया गया है, तो वहां पर कंपनसेशन मिलेगी, यानी कि जिस पर्सन का नुकसान किया गया उस पर्सन को कंपनसेशन मिल सकती है जो कि 1 करोड़ से ज्यादा की नहीं होगी। And further, the act talks of the appointment of the any officer not below the rank, यानी कि यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, वो ये भी बताता है कि यहाँ पर जो भी पर्सन है जो कि गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है, जो कम से कम डायरेक्टर जो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर है, या फिर उसकी उसी रैंक का कोई इक्विवेलेंट ऑफिसर है, वो यहाँ पर एडजुडिकेट करेंगे इस तरह के ऑफेंसेस को। जहां कहीं भी कोई पर्सन जो है वो कंट्रावीन करता है विद द डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द IT एक्ट, तो उसके अंदर डिफरेंट जो रूल्स बनाए गए थे, अगर आप उनकी अवमानना कर रहे हैं तो उन केस की, उस केसेस की सुनवाई कौन करेगा, जो गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टर की पोस्ट पर हैं या फिर उनकी इक्विवेलेंट पोस्ट पर कोई पर्सन है, वो यहाँ पर इनको एडजुडिकेट करेंगे। एंड फर्दर इट इज रिलेटेड टू द कोर्ट, द सेड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हैज बीन गिवन द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट, तो यहाँ पर उस ऑफिसर को सिविल कोर्ट की पावर जो है यहाँ पर दी जाती है। अगर हम अपील की बात करते हैं, यानी कि जो कोई भी यहाँ पर प्रोसीजर अपनाया गया, जिस तरह से कोई भी यहाँ पर जजमेंट दी गई है यहाँ पर बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, अगर उनकी अपील की जानी है तो यहाँ पर वो साइबर रेगुलेशन एपिलेटेड ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। दैट कैन बी डन विद द साइबर रेगुलेशंस एपिलेटेड ट्रिब्यूनल। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। तो चैप्टर 11 यहाँ पर कहता है कि जो भी वेरियस ऑफेंसेस हैं एंड इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है, जो कि DSP के रैंक से कम नहीं होंगे, यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक से कम नहीं होंगे। एंड इन ऑफेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, अगर कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर टेम्परिंग की गई है, अगर यहाँ पर इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई इंफॉर्मेशन थी विच इज ऑब्सीन, जो कि अभद्र है, तो उसको यहाँ पर अगर पब्लिश कर दिया गया उसके रिलेटेड, अगर हैकिंग का इस्तेमाल किया गया उससे रिलेटेड, तो वहां पर DSP के अंडर कम से कम उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। एंड एक्ट यहां पर ये भी प्रोवाइड करता है कि एक यहां पर साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी को यहां पर क्या किया जाएगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जो कि अगर, क्योंकि IT एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज्यादा इनोवेट हो रहा है, तो अगर कुछ भी चेंजेस करने, कुछ भी इंप्लीमेंटेशन करनी है, तो उनको बेसिकली प्रपोज करेगा टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ। The said act also proposes to amend the IPC, तो यहाँ पर डिफरेंट जो एक्ट है उनको यहाँ पर अमेंड किया गया है, क्योंकि IT एक्ट के साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो चेंज हो गई, जैसे डिजिटल सिग्नेचर्स को यहाँ पर माना गया, सही माना गया है, तो यहाँ पर बहुत से एक्ट है जो चेंज किए गए हैं, अमेंड किए गए हैं, जैसे IPC 1860, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, एंड फर्दर, ताकि सभी एक्ट जो है इस ट्यून में रहे, अलाइनमेंट में रहे, तो इन सभी एक्ट्स को भी यहाँ पर अमेंड किया गया है।
आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना। आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900330 के ऊपर, and we will be sharing all the links to you and free PDFs to you. So thank you so much and see you again in the next video.